I said hallelujah. Now Nathan. अब नातान नबी, Now Nathan comes to David. अब नातान नबी आते हैं दाऊद के Now पास. I have to learn from Nathan. I have to learn from Nathan. नातान नबी से सीखने की जरूरत है. Now Nathan directly does not say it. नातान नबी सीधे तौर पे नहीं बोलते. Nathan has met Ram Gopal Verma. Who's Ram Gopal Verma? Yeah. Somebody आया, कौन है रे? हाँ, हमारा बाहर में रहता है, बाजू में रहता है. अच्छा. He has met him. उससे मुलाकात हुई So he उनकी. makes a story. तो वे कुछ कहानी बना लेते हैं. Come on now. चलिए अब Do you want to read that story? क्या चाहते हैं उस कहानी को पढ़ने? Everybody, yeah, we want to read the story. So I'll read the story. 2 Samuel chapter 12 and verse 1. Then the Lord sent Nathan to David and he came to him. Now Nathan is a prophet, okay? And he came to him and said to him, there were two men in one city, one rich and the other poor. तब प्रभु यहोवा ने दाऊद के पास नातान नबी को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिनमें से एक धनी था और एक गरीब था. Now those of you who have not read the story, you're reading it so carefully, I know. Verse 2. दूसरा वचन. The rich man had exceedingly many flocks and herds. धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे. Verse 3. तीसरा वचन. But the poor man, everyone say poor man, सब लोग गरीब व्यक्ति had nothing except one little ewe lamb which he had brought and nourished, taken care of. It grew up together with him and with his children. It ate of his own food, drank from his own cup, and lay in his bosom, in his embrace. And it was like a daughter to that poor man. मगर गरीब व्यक्ति के पास Daughter. भेड़ Now की watch this. See how Nathan is building up. एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी नहीं था और उसको उसने खरीद कर जिलाया था और वो उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी हुई थी. वो उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वो उसकी बेटी के जैसे ही उसके लिए थी. You think God doesn't know to tell stories? आपको क्या लगता है परमेश्वर नहीं जानता कहानी बताना? सब पब्लिक देख रही है, स्टोरी अच्छा है रे. Verse 4. चौथा वचन. Now comes and a traveler, everyone say traveler, came to the rich man, but he refused to take from his own flock and from his own herd to prepare for the traveler who had come to him. But what does he do? He took the poor man's lamb, killed it, and prepared for the man who had come to it. और धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ नहीं लिया. कुछ नहीं लिया. मगर उस गरीब मनुष्य की गरीब मनुष्य की क्या किया? भेड़ की बच्ची लेकर उस छोटे लैम को लिया, काटा उसको, उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया. भोजन बनवाया. Now watch this. गौर करें. Verse 5. Read verse 5. पांचवा वचन पढ़े. Please read verse 5. पांचवें वचन को पढ़े. It's very interesting. David's anger was greatly roused. तेरी तो बताओ कौन है? And the man he said to Nathan, as the Lord lives, the man who has done this shall surely die. पांचवा वचन. तब दाऊद का क्रोध उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया है वह प्राण दंड के योग्य है. Write it down. लिख लीजिए. David could see another man's sin easily. और दाऊद दूसरे व्यक्ति के पाप को बड़ी आसानी से देख सकता था. David could see the other person's mistake easily. दाऊद दूसरे व्यक्ति की गलती को बड़ी आसानी से देख सकता था. But he could not see his own mistake clearly. लेकिन वो अपनी खुद की गलती को साफ तौर पे नहीं देख सकता था. He could counsel others but could not counsel himself. और दूसरों को परामर्श दे सकता था लेकिन खुद को ही वो परामर्श नहीं दे सकता था. Come on now. This is getting rough now. Come on, help me somebody. He could advise others but could not take his own advice. वो दूसरों को सलाह और राय तो दे सकता था लेकिन खुद अपने लिए वो सलाह या राय नहीं ले सकता. तेरे को खांसी हो गई ना, एक काम कर, गुड़ ले, उसमें ये डाल, वैसा डाल और बुक करके पी ले, सब ठीक हो जाएगा. अभी तेरे को जब, come on now, तू क्यों नहीं करता भाई साहब? Please listen very carefully. ध्यान से सुने इस वक्त. See, he could see the other man's fault. बोले अरे ये यड़ा है वो, सर दूसरे का लैम्प कैसा लेने का यार, ऐसा गलत है, इसको उसको पकड़ के मारना चाहिए. He had advice. He had insights. उसके पास सलाह थी, अंतर्दृष्टि थी. But he was blind to his own fault. लेकिन अपने खुद की गलती और दोष को देखने के लिए वो अंधा था. And now Nathan is the prophet. अब नातान ये तो एक भविष्यवक्ता था. He doesn't stop there. और वो वही नहीं रुका. I like Nathan. बहुत पसंद है. He takes a spear and he pokes it at David now. Read verse 6. बड़े छठे वचन को. Come on, bring it on.
And David doesn't stop there. वो अभी भाषण दे रहा है अभी. दाऊद वहीं नहीं रुकता. देखिए, He says, he shall restore fourfold for the lamb because he did this, because he had no pity. What a rascal he is. What a pascal he is. Come on, help me now. और उसको उस भेड़ की चर्बी बहुत गंदा आदमी अच्छी है. का 4 गुना बहुत भरना उसको होगा. मारना चाहिए, उसको पीटना चाहिए. उसने ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए. अब भी नेतन रुका है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पब्लिक हाथ नहीं उठा रही भाई. Are you listening? आप सुन रहे हैं? Read verse 7 now. अब पढ़े 7वें वचन. And Nathan said to David, I like to see Nathan's pose. आप सुन रहे हैं अभी? And Nathan said to David, तब नातान ने दाऊद से You कहा, are the man. तू ही वो मनुष्य है. और बोले तू ही है वो मनुष्य. उंगली तुम्हारे तरफ घुमाओ और बोलो तू ही है वो मनुष्य. Nathan said to David, तू ही है वो मनुष्य. And then he goes on and says to David, David, और वो दाऊद से कहता, दाऊद, तेरे को मैंने इतनी सारी पत्नियां दी, अगर कम पड़ती तो मैं तुझे और देता. ये न्यू टेस्टमेंट के लिए नहीं है भाई लोग. Some men are very happy. What's this? गौर करें. In other words, दूसरे शब्दों में, David, you had so much, दाऊद तुम्हारे पास बहुत कुछ है, but you did not look to your own, लेकिन तुमने खुद को ही और नहीं देखा and you took from somebody else. और किसी और की चीज को तुमने हाथ लाया. You are the man. तुम भी वो मनुष्य हो. तू बहुत बड़ी-बड़ी सीख सिखा रहा है, but you are the man, David. लेकिन तुम ही वो मनुष्य हो. You are the man, David. तुम ही वो मनुष्य हो. You are the man. And David और दाऊद was so humble before God. और दाऊद परमेश्वर के सामने बहुत ही नम्र हो गया. He says, I've sinned. उसने कहा, हाँ मैंने पाप किया है. Now, please listen to me अब carefully. ध्यान से सुने इस वक्त. There was another prophet. और एक भविष्यवक्ता था. He went to Jeroboam. वो यरोबाम के पास गया. Come on, help me now. चलिए. That same God who had told him that you will become king. और वही परमेश्वर जिसने उसे कहा था कि तुम राजा बनोगे. And that prophet comes और वो भविष्यवक्ता आता है and says, this altar will break. और आकर कहता है, ये वेदी जो है नाश हो Your जाएगी. kingdom shall fall. तेरा राज्य नाश हो जाएगा. Instead of taking the correction, और वहां पर वो सुधार लेने के बजाय, you know what Jeroboam did? आप जानते हैं यरोबाम ने क्या He किया? said, guys, kill this guy. और उसने कहा, लोगों इसे पकड़ के मार डालो. But God had mercy on the prophet. He says, you have stretched your hand towards me, your hand will be paralyzed. और परमेश्वर ने दया दिखाई. Jeroboam's hand was indeed paralyzed. और यरोबाम का हाथ को लकवा मार गया था. But David, I like David. लेकिन दाऊद को देखो, बहुत पसंद है दाऊद. When Nathan corrected him, जब नाथान ने उसे he सुधारा says, you are the man. और उसने कहा, तुम ही वो मनुष्य हो. You are the man. तुम ही वो मनुष्य हो. Immediately David didn't double down. David immediately just went on his knees perhaps and says, boss, I'm sorry, I've sinned against God. Very few people in the Bible, very few people even today in the Christian world will ever do this. और तुरंत ही दाऊद हो सकता है घुटने पर आकर उसने मान लिया होगा कि हाँ ये मैंने गलत काम किया है. देखिए, बहुत ही कम लोग हैं आज, देखिए, और बहुत ही कम लोग बाइबल में भी देखते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया. That was the restoration point of David. और यही हम देखते हैं दाऊद के लिए पुनर्स्थापना का मोड़ बन गया. When God shows you your blind spot, do not be proud and neglect it. Rather humble yourself and say, I receive it. That will begin your restoration. तो परमेश्वर आपका ब्लाइंड स्पॉट दिखाता है तो वहां पर घमंडी मत बने, लेकिन अपने आप को नम्र करें और अपना लीजिए, मान लीजिए उस बात को. यही आपके लिए पुनर्स्थापना का शुरुआत होगा. Write it down. लिख लीजिए. How does God show us a blind spot? Can I reveal it to you now? कैसे परमेश्वर वो ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है? God will show you your blind spots alone first. Write it down. Alone. Everyone say alone. परमेश्वर आपका ब्लाइंड स्पॉट्स अकेलेपन में दिखाएगा. Everyone, come on, talk to me. Say one on one. आमने सामने. Alone. When you're with Him in prayer, जब आप उसके साथ होते हैं प्रार्थना में, He will talk to you. वो आपसे बात करेगा. And say, son, कहेगा बेटे, He will give you a scripture. वो आपको वचन देगा. He will give you an impression in your heart. और देखिए, आपके दिल में कोई वो प्रेरणा देगा. Son, you are wrong. और बेटे देखो, तुम गलत हो यहाँ. Your husband is right. तुम्हारा पति सही. Always he's right, huh? हमेशा वो सही होता है ना. Lord, even you're siding him, huh? वो आप भी उसकी साइड ले रहे हैं. Sometimes the Lord will speak to the man. और कभी-कभी प्रभु जो है उस पुरुष से बात करेगा. Your wife is right. तुम्हारी पत्नी सही. Yeah, every time she's only right. हर बार वही हमेशा सही रहती ना. Hello. You see, there are people आप देखते ऐसे लोग होते हैं who don't receive this correction. जो इस तरह के सुधार को लेते So नहीं. now God moves to His closest people. तो परमेश्वर उसके बाद उसके करीबी लोगों के पास जाता है. Then the correction will come through your own family members. फिर उसके बाद वो सुधार जो है आपके परिवार के लोगों के जरिए आएगा. Your close people. आपके करीबी लोगों के जरिए. May God give you such close people. परमेश्वर आपको ऐसे करीबी लोग दे. Oh, you should have received this. आपने ग्रहण किया होता है इसे. May God give you such people परमेश्वर आपको ऐसे लोग दे in your life who call it black, black and white, white.
आपके जीवन में जो काले को काला कहे और सफेद को सफेद कहे, you know, make God keep you away from such people. ये कैसा दिखता है? बहुत अच्छा दिखता है, और तुम पीछे मुड़ के जो ना बंदर दिखता है. कशी दिसता पड़े? देखो कैसी दिख रही है, माकड़ा बोरी दिसता. Hello. They will not tell you in front, वो आपके सामने नहीं कहेंगे आपसे, but they will tell you behind your back. लेकिन आपकी पीठ पीछे बोलेंगे. Now youngsters don't like anybody tell. So come on, help me now. चलिए मदद करें. Now mothers and fathers, please don't look at your children. Yeah, see, father, pastor told you. Please, God is using you. You are not God. Many mothers now. See, today pastor also told you. देखिए बहुत सारी माँ ऐसा बोलती, देखो आज पासवान जी ने सही कहा, ऐसा ही. It's not far. It's the second level. So sometimes God will use our parents. तो कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर हमारे माता पिता को इस्तेमाल करेगा. God will use our pastors. परमेश्वर हमारे पासवानों का God इस्तेमाल will करेगा. use your friends परमेश्वर आपके दोस्तों का इस्तेमाल करेगा to speak to you. आपसे बात करने के लिए. Hello, how many of you listening right now? आप सुन रहे हैं? Now there also you say, oh, but you don't understand me. Oh, you don't know what I'm going through. Oh. और वहां पर भी आप ऐसा कहेंगे, नहीं वैसे तुम समझते नहीं हो किस Now बात से you're मैं जा रहा हूं. justifying. अब आप अपने आप को जायज ठहरा रहे हैं. Samson, शिमशोन, write it down. लिख लीजिए. Samson, शिमशोन, you see, his heart would come on any girl. उसका दिल देखिए किसी भी लड़की पे आ जाता था. Mama, माँ, I saw her in my dream. मैंने उसे अपने सपने में देखा. तेरे को सब ड्रीम में दिखता रहे. चुप इधर आ. तेरी तो. Mama, I think the Lord is talking to me. Lord तेरे से सब बात करता है. जितना जो प्रभु से भी बात करता है. स्कर्ट में घूमते तेरे से Lord बात करता है. Hello, सुने, just an example. और ये बस एक उदाहरण था. So his parents spoke to him. तो उसके माता पिता ने उससे बात किया. He says, beta, देखो बेटे, is there no one in Israel that you are going out? ये इजराइल में क्या कोई लड़की नहीं कि तुम बाहर जा Is रहे there no one in the church that you are always durbin outside? हो? क्या कलीसिया में कोई ऐसी नहीं है कि तुम हमेशा बाहर दूरबीन लगा के देखते हो? Hello, सुने, correction. सुधार. God was protecting him. परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा था. Touch two people and say, God was protecting him. दो लोगों को छोड़, परमेश्वर उसकी रक्षा कर रहा था. Mama, you don't know Mama. You don't know Papa, Appa, Ayya. जो भी बोल रहे हैं अय्या पापा, एक दिन तेरी आंख खुलेगी. Hello. Yes, Mama, you don't know he's a great guy, Mama. If he's not in the Lord, so what, Mama, Mama, Papa, Appa. My love will bring him, Appa. मेरा प्यार उसे खींच लाएगा. Love does not bring anybody, Papa. प्यार किसी को खींच कर नहीं लाता. It's all fairy tales. So they don't listen. तो सुनेंगे नहीं. And then God took him publicly correction through the Philistines. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फलिश्तियों के जरिए जो उसे डांट. Come on, hello, are you listening right now? But वहीं पर भी नहीं सुधरा. You see, church, every person thinks what he or she is doing is right. मैं right हूँ, मैं. अरे कभी तूने वचन खोल के देखा है? Personal with God. How many of you listening right now? व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ. Have you submitted to close people? Forget. Many people say, oh, pastor's always like that. Okay, fine. Find your team. Don't find yes men. Yes men. मैं सही हूँ ना? हाँ तू सही है. चढ़ झाड़ पे चढ़. और एक दिन तू झाड़ से गिरेगा. You see, church, Samson did not listen to his mother's correction. Now, I'm not saying mothers and fathers are always right. Please don't get this thing right. ऐसा नहीं कि माता पिता हमेशा सही होते हैं. देखिए, गलत मत समझिएगा. But you see, Nathan, David was so humble enough. He said, नहीं यार, ये जो बोल रहा है ना, ये वर्ड के हिसाब से बोल रहा है. लेकिन दाऊद अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने मान लिया उस बात को. And that day began David's restoration. Look at somebody and say, your restoration begins today. और उसी दिन दाऊद की पुनर्स्थापना शुरू हो गई. किसी को देखकर के आपकी पुनर्स्थापना Tell शुरू your होता other है. neighbor, your restoration begins today. अपने पड़ोसी से कहे कि आपकी पुनर्स्थापना शुरू होती है आज. Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाएंगे हालेलुया. Okay, now is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? How many of you glad you're here? कितने लोग खुश है कि आप यहाँ आए? Others are not. Okay, never mind. Now let me take you into some things where people give a different name to their justification. Everyone say justification. चले जाते हैं कुछ. Write it down. Point number 1. पहला मुद्दा Write it down. लिख लीजिए. Many people, बहुत सारे लोग they say, वे कहते हैं मेरे मन में कुछ नहीं है, जो मेरे मुंह में आता है सब मैं बोल देता हूं. मुझे मन अंकाय ना, मेरे मन में कुछ नहीं, सगळे तोंड आणता साहब. दिल में कुछ नहीं है, मुंह में कचरा है पूरा. मतलब जो भी मुंह में आया बक दिया, जो भी है ना मैं सामने ही बोल देता है. अच्छा,
तू क्या एक्टर कह रहा है कि कैमरा के सामने नहीं बोलते तू? See, such people, they justify themselves by speaking anything that comes in their mouth. और देखिए ऐसे लोग जो है अपने आप को जायज ठहराते हैं, जो भी उनके मुंह में आता है उसे बोल के। They never see the feelings of the opposite person. लेकिन कभी भी सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को समझते नहीं है। How many feelings in कि लोग सुन रहे हैं। मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं, लेकिन मेरे मुंह में आके मैंने दे दिया तेरे को। अगर यही तेरे साथ होता तो भीगी बिल्ली जैसी बैठती थी ऐसा। बिल्ली पे पानी डाला है? नहीं डाला, मत डालो। बहुत डरते हैं बिल्ली लोग। यू से मुझे मनात काय ना, मेरे माझ्या मनात काय नाही, मैं जो तोंडात आलं ना सगळं काही तिथेच उलटी करून जातो मी। मेरे मन में कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे मुंह में आता है ना अच्छा? सब कुछ वही उल्टी कर देते हैं। That is pride. ये घमंड है। Write it down, pride. लिख लीजिए घमंड है। How do I know it is pride? कैसे जान सकते हैं घमंड? Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती write है, it down, Ephesians 4:15, speak the truth in love. इफिसियों का 4 अध्याय 15वां वचन ऐसा कहता है, सच्चाई को बोलो लेकिन प्रेम के साथ। You see, there are people who are today, you open on the internet any this thing. Today people are correcting people from the pulpit. आप पाएंगे कि आज जो लोग जो मंच पर से लोगों को सुधारने की कोशिश Come on. कर रहे हैं, And they're giving scriptures. Paul did this through the letters. He spoke about this one and that one. Tell your neighbor, you are not Paul रे बाबा. अपने पड़ोसी को बोले आप तो पौलुस नहीं है ना। हाँ? तू प भी नहीं है. And they will give scriptures. फिर वो वचन भी देते हैं इसके लिए। They are using the pulpit to correct, bring down people just to get some likes. और Come on, help me somebody. इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों को गिराने के लिए, बस उन्हें कुछ लाइक्स मिल जाए इसके लिए। One person wrote, एक व्यक्ति ने लिखा, Prophet T.B. Joshua is wrong. He is this. Arey, please have respect. That man has already passed on to glory. Come on, help me somebody. Why are you talking nonsense? और क्यों आप बेतुका बकवास की बात? There are so many things in the world to talk about. Can't you talk about that? How many of you understand what I'm saying? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर What चर्चा if की जा सकती God है। took our things and spoke from heaven and whole of Mumbai came to know? क्या होगा अगर परमेश्वर हमारे सारे चीजों को लेकर स्वर से सीधा बोल दे मुंबई शहर में, तो क्या होगा? Hello? Look at somebody and say, किसी को लेकर कहे, pride speaks nonsense. घमंड बकवास की बातें करता है। परमेश्वर ने हमारे कितने गलतियों को माफ किया, क्या क्या नहीं माफ किया। The Bible says, if you have something, speak to one another privately. और बाइबल ऐसा कहते हैं अगर तुम्हारे दिल में कुछ है किसी के लिए तो जाकर अकेले में बात करो उससे। Is anybody following me right क्या now? कोई समझ रहे हैं? If this is helping you, lift your hand and say, I'm listening. अगर ये आपकी मदद कर रही है तो अपने हाथ उठाकर मैं सुन रहा हूँ। The second thing, दूसरी चीज, I spoke to somebody the other day. I said, why are you not praying? और किसी So से बात instead of receiving the correction, now I did not know, but in the spirit I saw आत्मा this का आया, मैंने man देखा not praying. कि ये व्यक्ति जो है ना प्रार्थना नहीं करता है। Now he should have understood that God showed me. Come on, hello, are you listening उस right व्यक्ति को now? समझ जाना चाहिए था कि सोचो परमेश्वर ना, ने दिखाया। सोचो ना, मैं जैसे ऐसे बात कर रहा हूँ और बोला तू इतने दिन से तूने प्रार्थना नहीं की ना। अभी उसने समझना चाहिए कि एक मैन ऑफ गॉड को, एक प्रोफेटिक आदमी को एक ऐसा एक वर्ड आ रहा है और मुझे वो ठीक से पहचानता भी नहीं है। कम ऑन, हेल्प मी। ही इज नॉट फ्रॉम करुणा सदन। वो करुणा सदन से भी नहीं। उसको मैं एक बहुत सालों से मिला हूं। मैंने बोला तूने पिछले 3 हफ्ते से प्रार्थना नहीं की है। नाउ ही शुड हैव अंडरस्टूड दैट वर्ड। एक नॉर्मल आदमी जो जूस पी रहा है और उसके साथ मैं बैठ भी नहीं रहा हूं, एक कॉन्फ्रेंस में मिला हूं, सामने प्रभु मुझे बता रहा है कि 3 हफ्ते से तूने प्रार्थना नहीं की, क्या प्रॉब्लम है तेरा? प्रभु बोल रहा है। और उसने वो प्रोफेटिक वर्ड रिसीव करने के बजाय वो मेरे को क्या बोल रहा मालूम है? प्रॉफिट आप समझते नहीं हो, बोलता है बहुत बिजी हूं मैं। अरे बेवकूफ, खुदा ऑफ हेवन तेरे से बात कर रहा है। अगर तू बोलता था हाँ हाँ पास्टर जी, आई एम बिजी, आई नो, बट आई शुड बी स्टार्टिंग प्रेइंग, दैट वुड बिगिन द रेस्टोरेशन। सोचो ना, अरे एक आदमी जो तुम्हें इतने सालों से मिला नहीं आके तुमको बोलता 3 हफ्ते से तूने प्रार्थना नहीं की है। हाँ, उसने बोलना चाहिए थैंक यू मैन ऑफ गॉड कि हेवन ने आपको बताया मेरे बारे में। वो क्या बोलता है मालूम मुझे? आपको नहीं पता मैं कितना बिजी हूं। मैं उसको सीधा बोलने वाला था, मुझे क्या करना है? तू बिजी रह क्या, तू माउंट एवरेस्ट चढ़, मेरे को क्या करना है? What do I know to do man? तेरे प्रार्थना करने से मुझे क्या मिलने वाला है? हाँ भाई, तू 1-2 करोड़ देगा तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उधर का।
Just think about it. सोचिए इस बारे में। A man comes and tells you certain thing and you don't receive it. और एक व्यक्ति आपके पास आकर कुछ चीजें बताता है और आप ग्रहण नहीं करते, You justify it. आप अपने को जायज And ठहराते हैं। after the meeting you come, actually, no, pastor, you should hear my story. I don't want to hear your story. I'm not Ram Gopal Verma. Sell your story, you'll make some money. Write your script and put it on some. Somebody say, when God reveals my blind spots, कोई कहे जब परमेश्वर मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स को जाहिर करता है I must receive the correction. तब मुझे सुधार को ग्रहण करना चाहिए। सुनिए, करेक्शन कैसे आता है, ध्यान से सुने और रिसीव कीजिए। करेक्शन कभी कभी प्रभु जो है पहले अकेले में बात करता है। सबने बोलो अकेले में बात करता है। अकेले में मतलब कैसा? जरूरी नहीं कि प्रभु तुमसे आके मेरे बेटे ऐसा बोलने जरूरी नहीं है। तुम भाग जाओगे घर छोड़ के ऐसा बात कर रहे थे। Pastor, how do you know? I've heard the voice of God. You can ask my wife. इन्होंने प्रभु की आवाज को सुना है। You can ask Pastor Anita. One day the Lord spoke. It was hardly just once or twice in my lifetime. The whole house shook. I thought an earthquake had come. The whole house. I said, Anita, what is happening? She was like, what's happening? This was when we were just married. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे God's voice is not something like some Mittu Baba, something. Sometimes God can speak to you through a sermon and you will feel this word is exactly for you. और कभी कभी परमेश्वर अपने संदेश के जरिए आपसे बात करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये वचन बिल्कुल आप ही के लिए है।